Hello student, today revision number 5 for exam. Today my topic is the cardiovascular fitness. Cardiovascular fitness, measurement of the cardiovascular fitness, Harvard test, many items of the Harvard test. So let's start. My topic is cardiovascular test. Measurement of the cardiovascular fitness, Harvard step test, Rockport test. What is the cardiovascular test? Yeah, what is the cardiovascular fitness? Before proceeding to various tests of the cardiovascular fitness, it will be essential for us to understand the meaning of cardiovascular. In fact, cardiovascular fitness is the ability of the heart and lungs to supply oxygen, rich blood to the working muscles tissues, and the ability of the muscles to use that oxygen to produce energy for movements. This type of fitness is required to sustain physical activity, or it can be said that cardiovascular fitness is essential for us to perform aerobic activities. There are following tests to measure the cardiovascular fitness. This is a definition of cardiovascular fitness. It's very important for exam and viva and practical. कई बारी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ भी जाता है. सपोज कि अभी पिछले साल जो ईयर चला गया है 2018-19, उसमें आया था, सॉरी 1920, ये क्वेश्चन था उसमें 3 मार्क्स में. व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट नंबर 1. हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किस लिए किया जाता है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजरमेंट करने के लिए. आइए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट. द पॉइंट ऑफ द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट is a cardiovascular fitness test. It also called aerobic fitness test. It was developed by the Bronches and other Broha and other in 1943. It is used to measure the cardiovascular fitness or aerobic fitness by checking the recovery rate. Purpose, क्या पर्पस होगा हार्वर्ड टेस्ट का? टू मेजर द कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल्स. इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड, अ जिम बेंच और बॉक्स ऑफ 20 inches high for the men and 16 inches for women, a stopwatch and candle tape. पिछली बार क्वेश्चन आया था इसमें एमसीक्यू में कि हार्वर्ड टेस्ट जब करते हैं उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है बेंचेस की, और जब बेंचेस रिक्वायर्ड होती है तो उसमें बेंच जो है वो बॉयज़ के लिए उसकी कितनी हाइट होगी, मैन के लिए कितनी हाइट होगी और फीमेल के लिए कितनी हाइट होगी. तो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें. तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में. अब जैसे यही है कि अ जिम बेंच और बॉक्स ऑफ 20 inches high for men and 60 inches high for women. तो ये चीजें ध्यान से पढ़नी है. इसको देखना है कि बॉयज मैन के लिए कितना इंचेस होगा जिम बेंच, और फीमेल्स के लिए कितना इंचेस होगा जिम बेंच. तो मैं अगली बार ध्यान रखूंगा कि अगर पिछले साल मैंने 20 मार्क्स 1 मार्क्स का 20 इंचेस
फॉर बॉयज़ के लिए किया था तो गर्ल्स के लिए भी मैं 16 इंचेस का कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्वेश्चन पुट अप होते हैं जब हम पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग, द एथलीट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द बेंच और बॉक्स। ऑन द कमांड गो, द एथलीट स्टेप अप एंड डाउन ऑन द बेंच or box at the rate of 30 steps per minute. 1 second up and second down for 50 minutes, 150 steps. Stopwatch is the switched on stimulatively at the start for the steppings on the bench. After that, the athletes sit down immediately after completions of the test. After 5 minutes, the total number of the heartbeat are counted between 1 to 1.5 minutes after completions of the last step. The heartbeat are counted for 30 seconds. The period, again the heartbeat are noted for 30 seconds after the finishing of the test. After that, for the third time, the heartbeat are noted after 3 minutes of completions of the test for 30-second period. The same foot must start the step up each time, and erect positions must be assumed on the bench. Calculation of the score. The athlete fitness index score is calculated with the help of the following formulas. Fitness index scores: duration of exercise in second upon 2 into sum of heartbeat in the recovery period. For example, if the total test durations was 30 seconds and the number of heartbeat between 1 to 1.5 minutes was 90, between 2 to 2.5 minutes was 80, and the between 3 to 3.5 minutes was 70, then the fitness index score will be, fitness index score formula is 100 into 10 test durations in second upon 2 into sum of heartbeat in the recovery periods. 100 into 300, 30 second. Question is if the total test duration was 30 seconds. 100 into test duration in second, 300 seconds upon 2 into sum of the heartbeat in the recovery period. Heartbeat recovery period क्या है इसमें? 1.5, 90, 80 and 70. Heartbeat between 1 to 1.5 minutes was 90, between 2.5 minutes was 80, and between 3 to 3.5 minutes was 70. So 90, 80 and 70 को टोटल करेंगे और अपॉन करके 2 इंटू जो आएगा 240. देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि फॉर्मूला क्या है इसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर का. 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्टबीट इन द रिकवरी पीरियड. तो 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन द सेकेंड क्वेश्चन में क्या है 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्टबीट इन द रिकवरी पीरियड.
कितने समय में जो है हार्ट बीट रिकवरी कर रही है, तो वो हार्ट बीट आएगी। तो 2 इंटू 90 प्लस 80 प्लस 70 240, 2 इंटू 240, ओके। तो 62.5 जो है इसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर आएगा, ओके स्टूडेंट। अब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है हार्वर्ड टेस्ट का और डिसएडवांटेज क्या है, पहले एडवांटेज देखते हैं। मैक्सिमम इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्टिंग इन दिस टेस्ट। Number 2, it is a required minimum cost. It is required to minimum cost. Number 3, it is a simple to set up and the conduct. अब disadvantage क्या है हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट का? There are difference in the biomechanics categories among individuals, but the height of the box or bench remain same for the tall individual and short individuals. It will be easy for tall individuals and difficult for short individuals. The some difference can be seen in the case of body weight. Those individuals who are overweighting, it will be difficult for them. So it is no implemented equally to all individuals, okay. These are advantage. Number 2 टेस्ट, कार्डियोवास्कुलर जो फर्स्ट टेस्ट है वो है हार्वर्ड टेस्ट और सेकंड टेस्ट है रॉकपॉट 1 मील टेस्ट। अभी रॉकपॉट 1 मील टेस्ट में क्या चीज है हम उसको देखते हैं। ये कार्डियोवास्कुलर टेस्ट फॉर कार्डियोवास्कुलर टेस्ट। रॉकपॉट 1 mil test is also known as the Rock-Post Fitness Walking Test. This test is suitable for sedentary individuals. The object of the test is to check or observe the development of the individual's VO2 max, VO2 max, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। कई बार ये क्वेश्चन भी बहुत जल्दी एग्जाम में आ जाते हैं। कई बार VO2 max क्या है, व्हाट इज द VO2 max? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पर पर्पस क्या है रॉकपोस्ट वॉकिंग टेस्ट का? पर्पस टू मेजर द कार्डियो रेस्पिरेटरी ability of the individuals, cardiorespiratory ability to individuals. Equipment 400 meter और 200 meter running track. Number 1, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसमें रॉकपोस्ट वॉकिंग टेस्ट में या 1 मील टेस्ट में? रिक्वायरमेंट है कि 400 मीटर और 200 मीटर का ट्रैक होना चाहिए। नंबर 2, स्टॉप वॉच, ओके, स्टॉप वॉच, वेटिंग मशीन, वेटिंग स्केल and assistant of helper, okay. Next, प्रोसीजिंग क्या है इसकी, कैसे हम इसको करेंगे इस टेस्ट को? While conducting or the administrating this test, it should be a windless day. First of all, take the body weight of the individuals take the body weight of the sportsman and athlete on a perfect weighting machine. The weight should be taken with the maximum cloth on the body of the sportsman and the athlete. Then mark the starting point on a 400 meter track, 1 mile 609 meters.
the individual has to run the distance of the one meal in minimum time. So record the time of the one meal within the stopwatch. Immediately after finishing the one meal walking, record to heart rate with normal of the monitor method. The monitor of the ECG can be used to get a more accurate heartbeat. Okay. कैलकुलेशन ऑफ द VO2 मैक्स, ये जो टेस्ट है रॉक पॉस 1 मिल टेस्ट है, ये कार्डियो रिस्पिरेटरी फिटनेस को चेक करने के लिए है। तो इसमें जो है VO2 मैक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो कैलकुलेशन ऑफ द VO2 मैक्स, द कैलकुलेशन ऑफ द VO2 मैक्स can be determined with the help of the following formulas. फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू 132.853 माइनस 0.0769 इंटू बॉडी वेट माइनस 0.3877 इंटू एज प्लस 6.135 इंटू जेंडर, 3.2649 into time minus 0.1565 into हार्ट रेट। कई बार ये फॉर्मूला जो है एग्जाम में आ जाता है, तो पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ द VO2 मैक्स। वहां पे जो है वेयर द कौन कौन चीजें हैं, जैसे कि बॉडी वेट इन द पॉइंट, बॉडी वेट जो है पॉइंट में होना चाहिए, टाइम इज इन द मिनट्स एंड 100 of minutes, heart rate in the beat per minute, age is in year. After calculating of the VO2 max, the comparison of the individuals can be done with the result of the previous test. It is expected that with appropriate training between each test, the analysis would surely indicate in the improvement of the individuals. Okay? तो ये था हमारा VO2 max, इसको आप तैयार कर लें, एक रिवीजन के तौर पर देख लें, समझ लें। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। रॉक पॉस 1 मिल टेस्ट की एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज फर्स्ट, मिनिमम इक्विपमेंट आर द रिक्वायर्ड, इट इज सिंपल टू सेट अप एंड द कंडक्ट, इट कैन बी द कंडक्टेड बाय द एथलीट। दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन more than one individual at the time. ये हमारे एडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है? स्पेसिफिक फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट। तो हमारा ये कंप्लीट है, और हम इससे आगे अगर चलते हैं तो उसमें कंप्यूटेशंस ऑफ द फिटनेस इंडेक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। तो ओके स्टूडेंट, रॉक पॉस टेस्ट 1 मील इज अ कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम लोग। कंपटीशन ऑफ द फिटनेस इंडेक्स, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकंड इनटू 100, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकंड इनटू 100, 5.5 into pulse count of the 1 minus 1.5 minute after exercise, कैलकुलेशन ऑफ द फिटनेस इंडेक्स स्कोर। इस फॉर्मूले को आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। आप बुक में देख सकते हैं कि फिटनेस इंडेक्स स्कोर लॉन्ग टर्म एंड फिटनेस इंडेक्स स्कोर शॉर्ट टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेशन ऑफ द फिटनेस इंडेक्स स्कोर। फिटनेस इंडेक्स स्कोर लॉन्ग टर्म का फॉर्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन द सेकेंड अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन द रिकवरी पीरियड। शॉर्ट टर्म क्या है फिटनेस इंडेक्स स्कोर? 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन द सेकेंड अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स आफ्टर एक्सरसाइज। तो आप लोग इसको एग्जाम मतलब एक बुक में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम थोड़ा आगे चलते हैं, रिवीजन चल रहा है तो इसमें हम पढ़ते हैं रिकी एंड जॉन्स टेस्ट।
रिक्की एंड जॉन्स टेस्ट जो है इसमें क्या है? रिक्की और जॉन्स टेस्ट में जो है सीनियर सिटीजन के लिए किया जाता है। इसमें 6 टाइप्स के आइटम्स हैं। ये आइटम्स जो है आपकी जो सीनियर सिटीजन लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी फिटनेस को जांचने के लिए करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिक्की एंड जॉन्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट को जांचने के लिए। इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारे इसमें टेस्ट हैं जो हम उनके लिए सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं। तो आइए समझते हैं रिक्की एंड जॉन टेस्ट। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट वाज द डेवलपमेंट बाय द रॉबर्ट रिक्की एंड डॉक्टर जेसी जॉन्स। It consists of the 6 easy and simple tests that assess the functional fitness of the senior citizens. The tests are easy to understand and effective tests to measure aerobic fitness, strength and flexibility using minimal and the inexpensive equipments. This test has common activities such as the getting up from chairs, walking, lifting, bending and stretching. The tests involve following test items. Purpose क्या है? To check the fitness ability for the senior citizen. Okay? इसमें 6 पार्ट हैं, जिसमें 6 टेस्ट के द्वारा हम लोग उसको जो है सीनियर सिटीजन के जो है टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि चेयर्स, सीनियर सिटीजन टेस्ट के कई पार्ट हैं। कई टेस्ट के द्वारा हम इसको जो है फिटनेस को जान सकते हैं सीनियर सिटीजन की। कौन कौन से टेस्ट हैं वो? चेयर स्टैंड टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर सिटअप एंड रिस्ट टेस्ट, बैक स्ट्रेच टेस्ट, 8 फुट अप टू गो टेस्ट। ये टेस्ट हैं। इसमें एक टेस्ट है, इसका नाम है चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट। चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी को जांचने के लिए। चेयर सिट एंड रिस्ट टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी को जांचने के लिए किया जाता है। तो क्या है, पहला हम टेस्ट देखते हैं, चेयर स्टैंड एंड टेस्ट। चेयर स्टैंड एंड टेस्ट में क्या चीज है, किस तरीके से है? This test check the leg strength and the endurance. The main purpose of the test is to measure the lower body stress, particularly the strength of the leg, which is the usually required for the various tasks such as the climbing stair, getting in and out of the vehicles, bathtubs or chairs. इक्विपमेंट क्या है इसमें? अ चेयर हु इज द स्ट्रेंथ, बैक एंड अ सिट ऑफ एट लीस्ट 44 सेंटीमीटर्स एंड अ स्टॉप वॉच। इंस्ट्रक्शंस क्या है? फॉर द पार्टिसिपेट शुड सिट इन द मिडल ऑफ द चेयर। ही शुड कीप इन हैंड ऑन द ऑब्जेक्टिव, shoulders crossed at the wrist. The feet should be flat on the floor or he back should be flat on the floor. He back should be erect. Repeat standing up and sitting down of the 30 second. ये है चेयर एंड फिटनेस टेस्ट, चेयर एंड स्टैंड टेस्ट। और भी टेस्ट हैं इसके, आप लोग पढ़ें, तैयारी करें, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। टेस्ट एंड मेजरमेंट से कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे और मैंने दिए भी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम यूनिट टेस्ट जो आपको 21 सितंबर को है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।